an initiative supported by ARMS, a division of ARCIL. Debt to Life has come some distance now, and in the journey that we've covered so far, we've had some very interesting people, some very interesting cases that we've come across. Well, we've had a maverick with a "I'm too cool to be in a debt trap" sort of an attitude. Information और confusing होगा. We've had young blood gone wrong. We've had a docile family man who just couldn't manage his finances and take care of his family. And we've had youngsters bristling with overconfidence and even a little bit of arrogance. We've had them all. But till now, someone we've not come across is the common man. Who could be you. A well-intentioned, good human being who finds himself in a debt trap for no real fault of his own. Dr. Suresh is that common man जिनकी खाली एक गलती है. अपनी पूरी फैमिली में वो एक अकेले ऐसे मेंबर हैं जिनको बैंक्स लोन देने के लिए तैयार हैं. डॉक्टर सुरेश ने अपने लिए कभी लोन लिया ही नहीं. वो लोन लेते चले गए अपनी पूरी फैमिली के लिए. उस फैमिली में उनके पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, उनके ग्रैंडफादर हैं जहाँ बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, और उनके एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है. सुरेश की कहानी एक बहुत ही सिंपल आम आदमी की कहानी है. तो कैसा लगता है हिंदुस्तान का आम आदमी? हाउ डज ही लुक लाइक? नौकरी करके अपना घर चलाने वाला इंसान, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला इंसान, अपने बड़ों का आदर करने वाला इंसान, मेहनत करने वाला इंसान, someone who's not afraid of working hard. और एक कैपिटलिस्ट, कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी में वो छोटे छोटे सपने रखने वाला इंसान, a guy who has small dreams, who wants to live the good life. डॉक्टर सुरेश भी कुछ ऐसे ही हैं. एक आम आदमी, a common man just like you. I need to take care of my family. सुना आपने? अभी और भी है. I need to take a loan to meet the needs of my family members. ये तो शुरुआत है. देखते जाइए कि आम आदमी की तस्वीर, आपकी तस्वीर आखिर होती कैसी है. I needed to help my family. What's wrong with that? Even if the whole world told me otherwise. I did it in the past, I'll do it again. आखिर कौन है ये आम आदमी? कई बार अपने से पहले अपने चाहने वालों के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है. Is it you? Could it be you? Think about it. दिमाग अपनी जगह टिकी है, but without a heart, without emotion, the head does not really matter. शायद इतनी गहराई से आपने अपने बारे में पहले कभी नहीं सोचा होगा. I had to build a family house, a home for all. You might have never seen such a portrait of yourself, and this image might just leave you very surprised. Debt is never a burden if it is for the family. ऐसा लगता है आम आदमी, और शायद ऐसे ही हैं आप. Sooner or later, I'll be out of this debt trap. ऐसी सोच रखता है, ऐसा कॉन्फिडेंस रखता है. Debt is like happiness and sorrow. It will come, it will go. तो क्या आप तैयार हैं आम आदमी से मिलने के लिए? खुद से मिलने के लिए? Are you ready to see yourself as the common man? If you think you are common, you are nobody. So
So can you picture Dr. Suresh in your mind just yet? You're nobody. I needed to help my family. What's wrong with that? Even if the whole world told me the head does not really matter. Out of this trap, I'll do it again. Difficult times bring difficult decisions with them. If you think you're common, you're nobody. मुझे पैसे को समझना नहीं आता। शायद इसीलिए पैसे ने कभी मुझसे खास दोस्ती नहीं की। लोग कहते हैं पैसे को समझना कोई मामूली बात नहीं है। शायद ठीक ही कहते हैं। मेरी समझ में सिर्फ साधारण सी मामूली बात ही आती है। मुझे मेरे अपने समझ आते हैं। इत्तेफाक की बात है कि उन्हें मेरे दिल भी समझ लेता है। मुझे अपनापन समझ आ जाता है, जज्बात समझ आ जाते हैं, अच्छाई समझ में आती है, फ़र्ज़ समझ आता है। और ये सब समझने के लिए मुझे कभी भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब ज़रूरत पड़ी मेरे अपनों को, तो उन ज़रूरतों को पूरा करना मैंने अपना फ़र्ज़ समझा। और फिर फ़र्ज़ को पूरा करने में पैसे लग गए। पैसा अपने साथ कर्ज भी ले आएगा, इसका मुझे अंदेशा नहीं था। फ़र्ज़ सही था, कर्ज कह नहीं सकता, समझ नहीं पाया। पर शायद हकीकत सिर्फ मेरी साधारण सी समझ से नहीं बनती है। हकीकत बनती है दुनियादारी से। कहते हैं दुनियादारी निभाने के लिए भी पैसे लगता है। पैसे की सोच शायद मेरी सोच से बहुत ज़्यादा गहरी है। सुना है पैसा बोलता भी है। मुझसे तो सिर्फ पैसा देने और लेने वाले ही बोला करते हैं। बड़ी कठोर सी बोली होती है इनकी, घबरा देने वाली। शायद इसी घबराहट में मैं डेड टू लाइफ वालों का दरवाज़ा खटका बैठा। शायद डर गया था। दुनिया से तो नहीं, पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ, किस्मत से जूझना जानता हूँ, पर शायद कर्ज और कर्ज की भाषा से नहीं। लाइफ गुरु कहते हैं कि मुझे सब कुछ समझा देंगे, वो भी कैमरा के सामने। पैसे की गहराइयों को समझने के लिए मेरे इतनी सारी पढ़ाई कम पड़ जाएगी, कभी सोचा ना था। डॉक्टर सुरेश की सोच अपनी जगह थी। अब नजर डालते हैं डॉक्टर सुरेश के ट्रैक रिकॉर्ड पर। डॉक्टर सुरेश एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं। 2002 में इन्होंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से पास की। 2002 से 2007 तक ये एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट थे बैंगलोर की एक प्राइवेट क्लिनिक में। सन 2005 में इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का काम भी शुरू कर दिया था। 2007 के बाद ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के काम में जुट गए और 2009 में प्रमोशन मिलने की वजह से ये बैंगलोर से चेन्नई शिफ्ट हो गए। अब नजर डालते हैं डॉक्टर सुरेश की डेथ सिचुएशन पर। सुरेश, let's start from the beginning. You wanted to reconstruct your ancestral house. ये घर जो था आपके ग्रैंडफादर के नाम पे था, फिर ये आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ ताकि आप एक लोन ले सकें against this property to rebuild the property, to build a nice beautiful house. डॉक्टर सुरेश की डेथ सिचुएशन की एक खास बात है, इनका सारा डेट इनके फैमिली हाउस के लिए लिया गया है। आप गए बैंक के पास जिन्होंने आपको 10 लाख रुपए लोन दिया। राइट। तो आपके पास 10 लाख रुपए का लोन था ये रिकंस्ट्रक्शन वर्क अपने घर का शुरू करने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंड? लोन 10 लाख रुपए का था, इंटरेस्ट मिलाकर आज उसकी आउटस्टैंडिंग रकम 12,20,000 रुपए की है। So estimate what we proposed for ground and first floor was 18 lakh rupees. आप बैंक के पास गए, बैंक ने कहा डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री और इनकम स्टेटस आपको 18 लाख तो नहीं मिल सकते, 10 लाख मिलेंगे। फेयर इनफ, आगे चलिए। First we started with whatever savings we had. We had to kickstart the process. Maybe 1 month after the start, the loan got sanctioned and they started releasing the amount. Suddenly the rates were peaking out at that time.
of all the construction equipments and the labor, everything shot up at that time. That's what the time I started paying minimum amount dues for my credit card. We were staying in a rented house at that point in time. So we had to borrow money from friends and relatives. They are not family and friends and relatives, they're actually money lenders you went to. How much money did you take from money lenders? It was around 4.5 lakhs at one point in time. And this interest on its own would come up to 20,000 rupees per month. Thus we had to pay for some 9 months. Then first loan I went in for after this housing loan was a personal loan from. Why did you take the loan? Because we were running short of money at that point in time. जहाँ पे मेरा सैलरी था ना, सैलरी अकाउंट, उस बैंक से मुझे 2 लाख रुपीज़ का प्री अप्रूव्ड लोन मिल गया। बेसिकली जितने भी आपने लोन लिए, आपने पर्सनल लोन लिया, आपने बेसिक एक हाउसिंग लोन लिया, आपने मनी लेंडर से लोन लिए, हर चीज़ आपके घर के कंस्ट्रक्शन में जा रही थी। सुरेश, ये तो आपकी सारी बात हो गई पर्सनल लोन्स की। ये अब गोल्ड लोन है यहाँ पे करीब 1.9 लाख रुपीज़ का, ये पैसा आपने क्यों लिया? ये जो मनी लेंडर्स के पास से पैसे लिए थे ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, 4% पर मंथ, मतलब 48% पर एनम। डॉक्टर सुरेश ने जो पैसा मनी लेंडर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था, उसे चुकाने के लिए उन्होंने अपने घर का सोना गिरवी रखा। Whatever gold my mother had, we had to pledge that. All these personal loans were going smooth, except these credit cards. I had to close them one by one. So I had to borrow money. So end of it, we went for that loan from a cooperative bank. 7.5 lakh rupees. मोटे तौर पर डॉक्टर सुरेश की कर्ज की स्थिति कुछ इस प्रकार की है। एक हाउसिंग लोन है जिसका अभी 12,20,000 रुपए देना बाकी है। पहला पर्सनल लोन जिस पर 2,19,000 रुपए देना बाकी है। दूसरे पर्सनल लोन पे 98,000 रुपए देना बाकी है। तीसरे पर 30,000 रुपए और चौथे पर्सनल लोन पे 14,000 रुपए देना बाकी है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन है जिस पर 7,20,000 रुपए देना बाकी है और एक लोन अगेंस्ट गोल्ड है जिसका 1,90,000 रुपए देना अभी बाकी है। कुल मिलाकर डॉक्टर सुरेश का पूरा कर्ज 24,91,000 रुपए का है, जिसके लिए ये लगभग 55,000 रुपए मंथली EMI भरते हैं। तो ये स्टोरी है डॉक्टर सुरेश की। आगे देखना है कि इतने बड़े जो नंबर्स हमारे पास हैं, जो पूरा एक जाल है नंबर्स का, उसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी स्टार्ट कमिंग अप विद सम आइडियाज, सम सॉल्यूशंस। लेट्स फाइंड आउट। नंबर्स और फाइनेंशियल्स की परख करने के बाद लाइफ गुरु जुट गए डॉक्टर सुरेश को उनकी डेट सिचुएशन से निकालने के काम में। आपका ये प्राइमरी टास्क है, 5 कम से कम बैंक्स हैं जिनके आपके लोन्स हैं। इन द नेक्स्ट 1 वीक यू हैव टू विजिट एवरी सिंगल बैंक, अपना लोन का डिटेल्स लेके जाइए, लोन नंबर लेके जाइए और उनसे पूछिए कि टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर मैं आज पे करने आता हूँ तो मेरे पास मुझे कितना देना है आपको, विद द डिफॉल्ट एंड पेनल्टीज एंड द फीस और वट एवर दे आर चार्जिंग, अनपेड EMIs, फ्यूचर बैलेंस EMIs, एवरीथिंग इंक्लूडेड। अगर ये लोन क्लोज करना है तो कितना अमाउंट है आपके सिर पे? टास्क तो लाइफ गुरु ने दे दिया, अब देखते हैं डॉक्टर सुरेश डेट टू लाइफ की टीम के बारे में क्या सोचते हैं। I am taking all of you as a team with a common goal, and I see there is a sincere concern in each one of you to solve my problems. फाइनेंशियल्स की तो छानबीन हो चुकी थी। लाइफ गुरु अब जानना चाहते थे कि डॉक्टर सुरेश के बिहेवियरल पैटर्न में वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के डेट ट्रैप में फंस गए। How do you define a trap, Suresh? See, what I understand by trap is that's the end of life. This isn't a trap. What else is a trap? I definitely see light. I can say it's only time in between. I know I am in a spot of a bother. I know I can't solve it overnight. Are you losing sleep over it? Few days, yes, I do. How grave is your situation? I am running against time. और किसी तरह की हैबिट्स, I mean, कभी दोस्तों के साथ maybe into gambling और किसी तरह का? I lost little money in investing in stocks when I knew that my fixed salary was not enough. ये टेंडेंसी अराउंड 30 के एज ग्रुप के लोगों में अक्सर देखी गई है डेट टू लाइफ में। कोलकाता के पार्थो का भी यही मसला था। स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट आया थ्रू सर्टेन ब्रोकिंग कंपनी। क्या हुआ ना, वो क्रैश हो गया ना। क्रैश हुआ था, क्रैश ऑफ 2008। उसके बाद मैंने पैसा निकाल दिया उससे। तो आप
बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं आप, यू डोंट गो आफ्टर ब्रांडेड क्लोथ्स और थिंग्स लाइक दैट। वेयर डिड द मनी गो? 30 लाख रुपीस कैसे? 25 लाख 30 लाख की जो हम बात कर रहे हैं, वेयर इज द मनी? डॉक्टर सुरेश बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि उनका पैसा घर बनाने में लग गया। लाइफ गुरु अब तक इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे।